Hello everyone, this is Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. So in today's session, I will be discussing some PYQs on area bounded by curves. This is nothing but application of integration only. So if you know integration, only after that watch this session because integration is must for this chapter. So let's start. Okay, so now let's start with the very first question. Find the area of the region A, XY belonging to R cross R where x goes from 0 to 3, 0 and 3 both included, and y goes from 0 to 4 and y is less than equal to x square plus 3. So basically मेरे को रीजन दिया हुआ है, मेरे को रीजन का एरिया बताना है. तो y is equal to x square plus 3. This is the parabola. मेरे को पता है कि y equal to x square times something is parabola only. And how you draw this parabola? Put x equal to 0, you will get y equal to 3. So at x equal to 0, you are getting at x equal to 0, you are getting y equal to 3. Y equal to x square प्लस थ्री. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को बोला है क्या, अपने को बोला है कि y इक्वल टू थ्री जब मैं यहाँ पे x इक्वल टू जीरो डाल रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज थिंग बट आई थिंक दिस दे हैव मेड समथिंग रॉन्ग हियर. सो दिस वुड बी माय ग्राफ y equal to 7, x equal to 0, and then I will put y equal to 0, I will get x equal to okay, for y equal to 0 I'm not getting any solution because y equal to 0 it will not satisfy this equation, and then they are saying that y is less than equal to x square plus 3. So put any point in this region. Let's say I am putting on when you will draw a parabola, there will be two regions, either outside this parabola or inside this parabola. And for knowing that which region we are talking about, we can take a point inside that. So now let's take a point, let's say 10 comma 0. When I will put 10 comma 0, I will get 0 equal to, I will get 0 less than equal to 10 square, which is 100, 100 plus 3, 103. So I'm getting 0 is less than equal to 103, which is right. मतलब 0 103 से छोटा ही होता है basically. So I am in this region basically. Okay. And y is between 0 and 4. So 0 and 4 के बीच में y है, तो मतलब मैं इस region की बात कर रहा हूँ. And then x is between 0 and 3. So 0 and 3, which implies between these two axes. So basically मेरा इस type कुछ region बन रहा होगा. Okay. And no, this thing is not. That's why, because I took 10 comma 0. This point is 0 comma 10 actually. So it would be 10 is less than equal to 3. Because we will put x equal to 0 now, and 10 is less than equal to 3 implies this equation is wrong. So it means my point is outside the parabola, because inside the parabola I took one point which is 10 comma 0 comma 10, but 0 comma 10 did not satisfy this equation. That's why my region is outside the parabola. So outside the parabola, this is my region, and rest two things I calculated from here. Y is between 0 and 4, so between 0 and 4, and x is between 0 and 3, so between 0 and 3. Okay. And somewhere the graph is wrong here, because at x equal to 0, it will pass through y equal to 3. So graph would be something like this. It will come till here, and then it will go like this. Okay, something like that. So my region would be this one. This will also be included, because y equal to 3, I'm getting x, for x equal to 0, I'm getting y equal to 3. So this region will also be there basically. So please ignore this graph. This is the correct graph. Okay, this region will also be included. And now you just need to calculate this area. So you can easily calculate from 0 to this point. This point is how much? Where this graph will intersect y equal to 4. So when you will put y equal to 4 here, you will get x equal to 1. So from 0 to 1, x square plus 3x, which is this graph, and then plus remaining region, which is 2 into 4. Okay. अच्छा, यहाँ पे x square plus 3x दिया हुआ है ना. So y equal to x equal to 0 पे I will get y equal to 0. Okay, so here they have written wrong. It would be 3x only. ठीक है. So after doing 3x, this is correct. ठीक है. So actually it was not wrong. The equation was wrong. In equation it would be y less than equal to x square plus 3x.
Now you will get the right answer. Okay. Now put x equal to 0, you will get y equal to 0. So this is my area, and in this region 0 to 1, my graph would be x square plus 3x dx plus this is a rectangle which is 2 into 4. And area कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा. Area is under the curve is nothing but the integral sign into y2 y2 minus y1 into dx. This is the formula for my area under the curve. Okay, within the given limits which you can take as x1 x2. Okay, so between x1 and x2 the area would be y2 minus y1 into dx. Okay, and here y2 is the upper curve and y1 is the lower curve. From 0 to 1, upper curve is this one, which is x square plus 3x, and lower curve is y equal to 0. So that's why x square plus 3x minus 0 dx plus this is a rectangle. You can simply write it as 2 into 4. So you will get your final area as 59 upon 6. इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है. How you will integrate it? Integration of x square plus 3x is equal to x square का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर n plus 1 upon n plus 1, which is x cube by 3 plus 3x square by 2. Okay, so this is my integration, and now just put on the values. Okay, and now put on the values 0 to 1, 0 to 1. You will get 1 by 3 plus 3 by 2, and putting 0 you will get 0 only, so it doesn't matter, plus 8. So this is the final answer. When you will add these three terms, you will get 59 by 6. Okay, so in the question it will be x square plus 3x. Okay, so this was my question number 1, and this is the way to calculate area under the curve. I hope you get that. Now let's move on to next one. Let S alpha equal to xy, x is greater than equal to y square and y square less than equal to alpha, and A of alpha is the area of region S alpha. If for lambda between 0 and 4, A lambda upon A4 is given by 2 is to 5, then what will be the value of lambda? They are asking me this thing. Okay, तो basically मेरे को A lambda upon A4 की value दी हुई है, and they are asking me the value of lambda. And now let us think about A. What is A? A is the area of region S alpha, where S alpha is given by this thing. Okay, so A lambda would be area of region S lambda. So S lambda कितना हो जाएगा? S lambda would be something like this: y square less than lambda and y square less than x. Okay, तो basically जो मेरा एरिया बन रहा है इस रीजन का, अगर मैं बनाऊं इसको तो कुछ इस टाइप से बनेगा. मेरे को पता y square equal to x ग्राफ होता है इस टाइप का. This graph is my y square equal to x type. Okay, because for x equal to 0 I'm getting y equal to 0, and y square is equal to some alpha. Y square equal to some alpha would be somewhere here, because y square equal to, let's say my alpha is 4, so it would be y square equal to 4. So from here I will get two regions, let's say y equal to plus 2 and y equal to minus 2. Okay, so in this case this is lambda, so this would be 0 comma lambda, and this would be 0 comma minus lambda. 0 comma minus lambda. Okay, so these are my 2 points, and I need to calculate the area between these curves. So basically मेरे को ये वाला area निकालना है, ये वाला region, this region plus this region. ठीक है, मेरे को ये एरिया बताना है बेसिकली. ठीक है, सो इट वुड बी, मेरे को पता है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सिमेट्रिक होगा, तो चाहे मैं एक एरिया निकाल के उसको डबल कर दूं. दैट्स व्हाई आई यूज 2 टाइम्स 0 to alpha. 0 to alpha means x equal to 0 here, and this point is my x equal to alpha.
2 times 0 to alpha into root x dx. Why? Because y square equal to x implies y equal to root x into dx. ठीक है, तो ये मेरे को मिलेगा एरिया, एंड यहाँ से मेरे को अब ये चीज ए मिल गया कि ए क्या है, ए अल्फा इज गिवन बाय 2 into अल्फा पावर 3/2. ओके, सो बेसिकली वाई स्क्वायर लेस देन अल्फा था ना, तो ये अल्फा इज द वैल्यू ऑफ एक्स ओनली. सो वहां से मैंने निकाला 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to अल्फा रूट एक्स dx. वहां से मेरे को ए अल्फा मिल गया. नाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए अल्फा. सो सिंपल है, ए lambda upon a4 can be easily calculated now. A lambda divided by a4 is equal to 2/5. So I can write it as 2 times lambda power 3/2 upon 2 times 4 power 3/2 is 4 cube 64. 64 into 64 power half is 8, is equal to 2/5. So from here 2 and 2 will cancel, and you will get lambda power 3/2 to be equal to 4 into 8/5 पावर 2/3, क्योंकि 3/2 पावर देंगे तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2/3. ओके, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा, एंड इसको अब मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. 4 स्क्वायर 16/3. सो इसको अगर मैं अंदर ले जाऊँ, इट वुड बी 4 into 8 upon 5. सो 32 upon 5 पावर 2/3. ठीक है, फिर मैं इसको स्क्वायर करके 1/3 करूंगा तो मेरे को कुछ स्टेप का आंसर मिल जाएगा. दैट माई लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 4 into 4/25 पावर 1/3. तो बेसिकली मेरे को ये पता चला था कि यहाँ पे 2 किस टाइप से आ रहा है. तो 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो एरिया बन रहे हैं विच आर सिमेट्रिक इन नेचर. दैट्स व्हाई. ओके, बाकी तो सिंपल था. मैं ये वाला पॉइंट आराम से निकाल सकता हूँ. ये वाला पॉइंट मैंने एक्स कैसे निकाला, जब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, तो मेरे को यहाँ से मिलेगा एक्स इक्वल टू अल्फा. तो बेसिकली ये पॉइंट है अल्फा. तो ये जो ये वाला मेरा पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है अल्फा कॉमा अल्फा. वहां से मेरे को एक्स मिल गया था. तो वहां से मैंने ए अल्फा निकाला बाय यूजिंग 2 into रूट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to अल्फा रूट एक्स dx. फिर मैंने इसको सीधे सीधे इक्वेट किया तो मेरे को ये आंसर मिल गया. इसको चाहे मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ. कैसे करूंगा, यहाँ से अगर अपन देखें तो 32 is what? 32 is 4 into 8, and 8 square 64. 64/3 is 4. So मैं वहां से 4 को बाहर निकाल लूंगा एक, and remaining 4 will be inside upon 5 square is 25. That's by 25. So 4/25 power 1/3. Okay. So basically ये तो सिंप्लीफिकेशन ही है. एरिया अंडर द कर्व इतना सही था कि आपको ए अल्फा की वैल्यू निकालनी थी. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, अब आगे चलते हैं. Find the area of the region A given by xy such that y square by 2 is less than equal to x and this thing is less than equal to y by 4. तो ये मैं कैसे करूंगा, इसमें देखो इसमें क्या होगा कि जो मेरा ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ. क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे बेसिकली पहले तो मैं जैसे आपको मैंने बताया, पहले टू इक्वल टू लेकर ग्राफ बना लो. यहाँ पे क्या ग्राफ बनेगा, यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का. यहाँ पे दो ग्राफ बनेंगे, एक बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड सेकेंड ग्राफ वुड बी y इक्वल टू माइनस x-4. ओके, सो यहाँ पे x इक्वल टू 0 डालने पे y इक्वल टू 0 आ रहा है. तो बेसिकली ये मेरा वो कर्व हो गया, और y इक्वल टू x-4 इज माई दिस लाइन. अब मेरे को वैसे मैंने बताया कि क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, या ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी है उसको बोलो, तो आपको देखना पड़ेगा कि लाइन किस तरफ की बात हो रही है कि लाइन की उस तरफ की बात हो रही है. तो इस तरफ का कोई भी पॉइंट ले लो. लेट्स से मैं ले लेता हूँ 10,0. जब मैं यहाँ पे 10,0 डालूंगा लाइन में, आई विल गेट 0 लेस देन, नहीं नहीं, x लेस देन इक्वल टू y/4 चेक करना है ना मुझे, और मैंने 10,0 पॉइंट लिया है. सो 10 इज माई x. सो 10 इज लेस देन इक्वल टू x y plus 4, where y is 0. So 0 plus 4 is 4. So 10 is less than equal to 4. This thing is obviously wrong.
सो मैं लाइन की इस तरफ की बात नहीं कर रहा, लाइन की इस तरफ की बात कर रहा हूँ, मतलब ये वाला पूरा रीजन। ठीक है। अब मेरे को देखना है पैराबोला किस तरफ है किस तरफ है। उसके लिए भी मैं ऐसे करता हूँ, कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, 10,0 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं 10,0 डालूंगा तो यहाँ पे तो मुझे मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 10। दिस थिंग इज ऑफ कोर्स राइट। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं पैराबोला के अंदर वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, मतलब ये वाला रीजन। तो लाइन किस तरफ लेकिन पैराबोला किस तरफ, मतलब कितना रीजन हुआ, मतलब ये पूरा रीजन हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा रीजन। ठीक है। तो मेरे को बेसिकली इस रीजन का एरिया बताना है। समझ में आया ना मैंने रीजन कैसे निकाला। पहले आप जनरली जो भी कर दिया है वो बना लो। उसके बाद आपको चेक करना है कि कर्व के किस तरफ आपका पॉइंट लाई कर रहा है। उसके लिए आप कोई भी जनरल पॉइंट लेके चेक कर सकते हो कि वो किस पॉइंट की बात कर रहा है, लेफ्ट या राइट। तो मेरे को इस रीजन का एरिया बताना है बेसिकली। ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कैसे करूंगा, वही वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x मुझे दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। पहले इन दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से होंगे, एक होगा ये वाला और एक होगा ये वाला। साइमल्टेनियसली मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे को कर्व क्या दिया हुआ है, मेरे को कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। एक्स की जगह मैं डाल देता हूँ वाई प्लस 4। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स वाई प्लस 4। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर -2y -8 इक्वल टू 0। ओके। तो वाई स्क्वायर -2y -8 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अब इसके फैक्टर्स कर सकता हूँ। वाई स्क्वायर -4y प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख गया होगा y कॉमन लिया मैंने, तो मेरे को मिला y -4 प्लस 2 कॉमन लिया, y+2 y-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को y की दो वैल्यूज मिली। वन इज -2 फ्रॉम हियर एंड अदर इज 4। सो माइनस, तो फिर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा इसमें, वहां से मुझे x मिल जाएगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई कैलकुलेटेड एज 2 -2 एंड 8 4। दीज आर माई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेसिकली इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में मेरे को एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ओके। सो वही चीज़ यहाँ पे मैंने करी है। फिर एरिया अंडर कर्व निकालना आसान है, सिंपल है। मैं चाहे x के बीच में इंटीग्रेट कर सकता हूँ, चाहे मैं y के बीच में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। दैट डिपेंड्स अपॉन मी। तो बेसिकली ऐसा होता है कि आइदर यू टेक इंटीग्रल y2 माइनस y1 इंटू dx, और इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ फ्रॉम x1 टू x2। आइदर यू कैन डू दिस इंटीग्रल टू कैलकुलेट एरिया in terms of dx, or you can even do in terms of dy. And how in terms of dy? In that case, you will take x2 minus x1, where again x2 will represent the curve which is above x1. इस केस में मैं करूंगा dy, and the limits will be from y1 to y2. I can do either of the two integrals. I will get my area only by doing either of these two integrals. ठीक है। तो इस केस में मैं y से कर रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। सो मेरी लिमिट्स हो जाएंगे फ्रॉम -2 to 4, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम -2 to 4। एंड ऊपर कौन सा कर्व है, ऊपर ऑब्वियसली बात है ये पैराबोला वाला कर्व ऊपर है, लाइन नीचे है। तो पैराबोला वाला कर्व को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो यहाँ से मेरे को लिखना है x की वैल्यू, तो x हो जाएगा y² 2। तो y² 2 यहाँ पे हो जाएगा x, y² 2 माइनस y+4, माइनस सॉरी माइनस x इक्वल टू y+4। तो वो चीज़ यहाँ पे होगी, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, सो इसको नेग्लेक्ट कर देना। बेसिकली y² 2 माइनस y+4 होगा। तो एक नेगेटिव साइन का फर्क आएगा बेसिकली, और कुछ नहीं होगा। ठीक है। फिर सिंपल आपको इंटीग्रेट करना है। यू कैन इजीली इंटीग्रेट y² 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ 3 y³ 6, क्योंकि अपॉन 2 भी है, प्लस 4 टाइम्स y² 2 माइनस y⁴ अपॉन 4 into 6 which is 24. फिर simply put down the values integrated between -2 and 4, and you will get 18 square units as your final answer. ठीक है।
एक बार आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद तो सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है। जस्ट आपको दिमाग का लगाना है, आपको एरिया निकालने में दिमाग लगाना है कि इस सीजन की बात हो रही है कि इस सीजन की बात हो रही है कि किस सीजन की बात हो रही है। बेसिकली आपको एरिया निकालने का मतलब वहां से दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना। ओके, सो इट इज दैट सिंपल। आई होप यू गेट इट। अब आगे चलते हैं। ओके, मूविंग अहेड। Find the area of the region bounded by the curves y equal to mod x plus 1, mod of x plus 1 and y equal to 2 power x। अब वापस मेरे को दो कर्व दिए हुए हैं और मेरे को इन दोनों के बीच का एरिया बताना है। तो अगेन सिंपल, पहले तो मैं mod x plus 1 बनाता हूँ। mod x plus 1 कैसे बनाऊंगा? पहले तो मुझे ग्राफ बनाना चाहिए। अगर मेरे को ग्राफ बनाना नहीं आते तब फिर मेरे पास बहुत ही डिफिकल्टी है बेसिकली। तो ग्राफ बनाना आना चाहिए मेरे को। तो mod x plus 1 क्या बोलता है? mod होता है कि इट विल ओपन फॉर पॉजिटिव्स ओनली, मतलब y इक्वल टू mod x plus 1 में, और y equal to mod x plus 1, I will calculate what? I will calculate the expression inside the mod। मतलब mod के अंदर वाला एक्सप्रेशन कब जीरो हो रहा है मैं वो निकालूंगा। x plus 1 equal to 0। दिस implies x equal to minus 1। सो बेसिकली जो मेरा एक्सप्रेशन है वो -1 पे टूटेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू x इक्वल टू -1 पे टूटेगा। तो फॉर x ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 0। तो ये ऑब्वियसली बात है, 0 प्लस 1 इज पॉजिटिव ओनली 1। तो उस केस में ये पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, मतलब x ग्रेटर देन -1 में दिस थिंग इज इक्वल टू x प्लस 1 ओनली। x लेस देन -1 में लेट्स से -2 ले लूंगा। तो आई विल गेट -2 प्लस 1 इक्वल टू -1। तो -1 इज ऑब्वियसली ऑब्वियसली नेगेटिव। उस केस में ये मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा। सो आई विल गेट -x -1 विच implies x is लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, आप इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हो, आइदर हियर और हियर, इट डजंट मैटर। सो ये है मेरा y इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्सप्रेशन का ग्राफ। तो x ग्रेटर -1 के लिए, मतलब -1 यहाँ पे कहीं पे होगा ना, -1, 0। तो उसके लिए होगा x प्लस 1 के बराबर, मतलब कुछ इस टाइप की लाइन बनेगी। इट विल पास थ्रू, जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो y इक्वल टू 1। सो दिस पॉइंट इज 1, 0। एंड सिमिलरली -x -1 वुड बी समवॉट लाइक दिस। ठीक है, सो ये तो ग्राफ बन गया मेरा मॉड x प्लस 1 का। दूसरा है मेरा y इक्वल टू 2 पावर x का। इसका ग्राफ का अगर आपको अंदाजा नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो y इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ कैसा होता है। y इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। ये अगर मेरी एक्सिस है तो y इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो e होते हैं 2.7। सो y इक्वल टू 2 पावर x का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होगा, बस इसके नीचे से पास होगा, क्योंकि e इज 2.7 एंड x एंड 2 इज लेस देन e, मतलब वो 2.7 से कम है इसलिए। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तो वो भी मैं बना देता हूँ। और ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? 2 पावर x। y इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तब y इक्वल टू 1 होगा बेसिकली। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है, तो ये भी y इक्वल टू 1 ही है।
तो मेरा ग्राफ यहाँ से पास करेगा बेसिकली। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो मेरे को ये रीजन बताना है, इस रीजन का एरिया बताना है, ठीक है। तो बस इसमें भी इतना ही काम था। बेसिकली आपको ग्राफ बना के वो रीजन आइडेंटिफाई करना है जिसका आपको एरिया निकालना है। उसके बाद तो सिंपल है अगेन। अब मेरे को ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0,1। और ये आगे जाके कहाँ पे कट कर रहा है मैं वो भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? मेरे को पता है कि ये जो मेरा ग्राफ है इसकी इक्वेशन x+1। तो बेसिकली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ y = 2 टाइम्स x है मेरा ग्राफ। ये मेरे को ग्राफ दिया हुआ है। अब मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, y की जगह डाल देता हूँ x+1। x+1 = 2 पावर x, ठीक है। वो ऑब्वियस सी बात है, ये x ग्रेटर देन 0 वाले रीजन में, तो x मेरा पॉजिटिव ही होगा। x मेरा पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। मेरे को वैल्यूज पुट करके चेक करनी पड़ेगी। जब मैं x को 1 पुट करूंगा तब मेरे को मिलेगा 2 = 2। वहीं से मेरे को मेरा आंसर मिल गया। तो बेसिकली आप अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो। जब आप x को 1 पुट करोगे देन यू विल गेट कि यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 2 और यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 2। सो x = 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 1, y क्या होगा, 2 पावर 1 = 2 ओनली। सो 1, 2। तो बस अब मेरे को दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए। अब एरिया निकालना आसान है। अब मैं एरिया आराम से निकाल सकता हूँ। एरिया इज नथिंग बट अगेन इंटीग्रेशन ऑफ y2 - y1। ऊपर कौन सा ग्राफ है? ऊपर ये स्ट्रेट लाइन वाला विच इज x+1। सो x+1 माइनस नीचे वाला ग्राफ विच इज 2 पावर x into dx, ठीक है। एंड आई विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम x = 0 to x = 1, दैट इज 0 to 1, ठीक है। अब तो सिंपल है निकालना। नाउ इट इज सिंपली इक्वल टू x² / 2 प्लस x माइनस ये है a पावर x। और a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पावर x into ln 2। Now you can simply put on the limits from 0 to 1 and you will get your final answer, ठीक है। ऐसे किया होगा यहाँ पे भी, ठीक है। a पावर x अपॉन लॉन ही होता है, तो यहाँ पे अपॉन लॉन 2 होगा, ठीक है। अब आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दो एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज 3/2 - 1/log 2, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज थी। आपको बस वो एरिया आइडेंटिफाई करना है विच यू हैव टू इंटीग्रेट। मतलब अभी इसमें क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसको ऐसे निकाल देंगे या फिर कुछ बच्चे इसको ऊपर से निकाल देंगे। सो आपको ये वाला एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपने ग्राफ ढंग से नहीं बनाया देन यू कांट आइडेंटिफाई द एरिया। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एरिया इट इज सिंपल, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं।
Find the value of lambda if area bounded by the parabola y square equal to 4 lambda x and the line y equal to lambda x is 1 by 9. ओके तो मेरे को दो कर्व्स दिए हुए हैं, एक कर दिया हुआ है y square equal to 4 lambda x and second curve is y equal to lambda x. So basically they are seeing that इन दोनों के बीच में जो area bounded है that is 1 by 9. तो पहले तुम ग्राफ बना लेता हूँ again and lambda is greater than 0 they are seeing. So y square equal to 4 lambda x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मतलब ये 0,0 को टच करेगा एंड y इक्वल टू लैम्डा x, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, लैम्डा इज पॉजिटिव सो x इक्वल टू 0 पे ये यहाँ से पास करेगा, सो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा. ठीक है, अब मेरे को निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट में निकाल लेता हूँ. y की जगह यहाँ पे लैम्डा x डाल देता हूँ, तो आई विल गेट लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 lambda x. And here I can cancel lambda. I will get two intersection points. One is x equal to 0 and other would be x equal to 4 by lambda. These two are my intersection points. Okay, so this is 0,0 and this point is 4 by lambda, comma, you can calculate y from here. Y is equal to lambda into 4 by lambda. So we will get equal to 4. So 4 by lambda comma 4 is my point. So these are my 2 points, okay, where the graph will cut this parabola. Okay, so 0 and 4 by lambda. तो अब बस एरिया निकालना आसान है. एरिया आपको दिया हुआ है 1/9. So 1/9 is equal to, again same thing, integration of from x1 to x2, which is 0 to 4 by lambda, y2 minus 5, and y2 will be above curve, which is a parabola, which is 4 lambda x, actually root of 4 lambda x, and take it to be positive because I am taking the positive side of x, minus y equal to lambda x, so minus lambda x, okay, into dx. अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, 1/9 is equal to, इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, रूट ऑफ 4 लैम्डा इज माई कांस्टेंट इंटू एक्स पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस lambda times x square by 2, and put on the limits from 0 to 4 by lambda and equate it to 1/9, you will get the value of lambda. So जब मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी तब मैंने कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आया. फिर यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि it is 4 cube is 64, 64 power 1/2 is 8. So this thing is nothing but 8 lambda होगा यहाँ पे, either it would be 8 by lambda power 3/2. So you will get 4/3 root of lambda. यहाँ पे कुछ गलती करी, चलो मैं यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करता हूँ. मेरे को मिलेगा 1/9 इक्वल टू रूट 4 लैम्डा. 0 पे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 वाला चीज तो हटा ही दो चाहे. रूट 4 लैम्डा, इसको मैं 2 रूट लैम्डा लिख सकता हूँ, तो मैं उसको रूट में लिख देता हूँ. आई विल गेट 2 रूट लैम्डा, 2 root of lambda into 4 by lambda power 3/2. So again it would be 8 by lambda, 8 by lambda power 3/2 upon 3/2. So that 3 will come here and 2 will go upside, so it will become 4 minus lambda into 4 square is 16, 16 upon 2 lambda square. Okay, so 1 lambda will cancel. Here you will get 8 by lambda, so it would be 1/9
equal to lambda power half and lambda power 3 by 2, only lambda would be left. So you will get 32 by 3 lambda minus 8 by lambda. As seen here, अब यहाँ से सिंपल है, आप 3 lambda को LCM लोगे, you will get 32 minus 24, which is equal to 32 minus 24, which is 8. So 8 by 3 lambda equal to 1 by 9. From here, you can easily see 3 and 9 will cancel, and you will get lambda equal to 24, which is the final answer. Cool. So again, a simple one, just identify the area and calculate the area bounded by the curve. Okay. आगे चलते हैं. Find the area bounded by the parabola y equal to x square minus 1 and the tangent at the point 2, 3 to it and the y-axis. तो ये भी वापस सिंपल है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पैराबोला मैंने बनाया, वो मैंने ये बनाया, फिर टेंजेंट एट द पॉइंट 2, 3 वो ऐसा बना ली मैंने, एंड द y axis इज दिस वन, y axis बोला ना, y axis इज दिस वन, सॉरी. ओके, सो एक मेरी एक्सिस है ये वाली, फिर एक है मेरा ये पैराबोला, एंड द टेंजेंट एट पॉइंट 2, 3 वो है ये वाली टेंजेंट. ठीक है, तो ये टेंजेंट, ये लाइन और ये पैराबोला, तो आई थिंक दे हैव मिस्ड समथिंग, क्योंकि ये वाली लाइन के लिए मेरे को x इक्वल टू 3 देना पड़ेगा, बट दे हैव नॉट गिवन इट, आई थिंक सो. सो वो चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी यहाँ. ठीक है, बाकी सिंपल है, वही मेरे को कर दिया हुआ, मेरे को एरिया बताना है, तो इट्स अगेन अ सिंपल इंटीग्रल क्वेश्चन. उस पर चलता है. दिस इज अ नाइस वन. इसमें मेरे को बोला है फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन ए एक्स वाई वेयर वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड एक्स. अगेन इसमें वापस वही मैं मॉड को खोलूंगा. कैसे खोलूंगा इसको, मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू फॉर एक्स less than 0, I will write it as minus x square because mod x will open with a negative sign. And for x greater than equal to 0, I will write it as x square. Okay, तो ये मैं जब बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा. For x greater than equal to 0, it is x square. So it is like this. And for less than 0, it is something like this. Okay, it is something like x cube, but not perfectly x cube. This is this graph, and y equal to 0 is this graph. Simple x-axis, okay? And then second is your axis between 1 and minus 1. Axis between 1 and minus 1. So this is my x equal to 1 and this is my x equal to minus 1. ठीक है, अब मेरे को देखना है कौन सा एरिया मेरे को बताना, तो यही रीजन बना, एक ये रीजन और एक ये रीजन. तो अगेन मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक रीजन है, तो मैं एक रीजन की वैल्यू निकाल दूंगा तो दूसरी की अपने आप आ जाएगी. क्यों? क्योंकि आई कैन टेल इट बाय सिमेट्री दैट बोथ द रीजन्स विल हैव इक्वल एरिया, सो आई कैन कैलकुलेट द एरिया फॉर वन एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2. So my answer would be 2 times integration of this point is 0, comma 0, and as I told you, this point is 1, comma 0. So 0 to 1. Upside curve is this one, which is x square. So x square minus this thing is x equal to 0, y equal to 0, dx. ठीक है, तो did I do something wrong? x square plus 1 होगा ना यहाँ पे, minus x square plus 1 and x square plus 1. ओके, सो यहाँ पे होगा x square plus 1, जीरो को जहाँ डालना है. ठीक है, तो यू विल गेट इट 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन is simply x and integration dx will be from 0 to 1. So you will get 2 times 1 plus 1 by 3 is 2 by 3. 1 plus 1 by 3 is 4 by 3.
and for 0 you will get 0 only. So this thing is how much? This thing is 8 by 3. Again, I did something wrong. 1 plus 1 by 3 is how much? 1 plus 1 by 3. 4 by 3 only. So 2 into 4 by 3 is 8 by 3. So when I will calculate the area for this thing is minus x square by 3. Okay, okay, okay. These two will not be symmetric because I neglected this plus 1. So it would not be 2 times because यहाँ पे एक plus 1 भी आ रहा है ना. अगर plus 1 नहीं आता तो फिर मैं इसको 2 times कर सकता था. So 4 by 3 is the area for the positive part. For negative part I also need to calculate. So I will get minus x square plus 1 dx को मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. Between, again this is minus 1, this is 0. So between minus 1 and 0. So I will get what? I will get minus x cube by 3 plus x का integration between minus 1 and 0. So this would be how much? 1 by 3 minus 1. That is, यहाँ से मुझे कितना मिलेगा? 0 पे डालने में तो 0 मिलेगा. 0 minus, यहाँ से मुझे मिलेगा minus of minus 1 by 3, which is 1 by 3 minus 1. So basically, 1 minus 1 by 3 is how much? 2 by 3. So it would be 4 by 3 plus 2 by 3, which is 6 by 3. And 6 by 3 is 2, so 2 is your required answer. तो यहाँ पे एक और चीज जो मैंने आपको बताई, एरिया में सिमेट्रिकली ये नहीं बोल सकता है कि इक्वल होगा वाइसो, बिकॉज यहाँ पे मेरे को प्लस वन भी करना पड़ रहा है. तो एक मेरा ग्राफ बन रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन का. उस चक्कर में थोड़ी मतलब सिमेट्री नहीं होगी यहाँ पे. सो यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया फॉर बोथ एंड देन ऐड देम. You will get your final answer as 2 square units. Okay, so this was all about the area under the curve chapter. आई होप आपको समझ में आया होगा. मतलब बेसिकली आपको करना होता ही है कि आपको कर्व बनाना है. वो आपके जो प्लेन एक्स वाई प्लेन पे आपको कर्व बनाना है. कर्व बना के वो एरिया आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा एरिया निकालना है. जैसे कि इस केस में ये वाला एरिया, अगर आपने वाला एरिया निकाल लिया उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन है. दैट इज सिंपल पार्ट. यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द एरिया इन द कर्व एंड देन जस्ट अप्लाई दिस टू बिटवीन द टू formulas, either dx or dy, and you will get your final answer. Okay, so I hope you got this session, and now let's end this. Thank you.